Hello everyone, how are you? I hope you all are good and well. So in this video we will talk about APK versus AAB. APK और AAB में क्या फ़र्क होता है और एंड्रॉयड ऐप बंडल्स होते हैं दोनों ही, और ये किस तरह से काम करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इनके दरमियान डिफरेंस बताऊंगा और इनके यूजेस बताऊंगा कि APK किस लिए यूज़ होता है एंड AAB यूज़ फॉर व्हाट। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको लाजमी मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आती है आपको, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता आपका, वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं APK बेसिकली होता क्या है और AAB होता क्या है, और ये दोनों किस लिए स्टैंड करते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं APK की तरफ पहले आ जाते हैं हम। तो APK स्टैंड फॉर बेसिकली एंड्रॉयड पैकेज किट एंड AAB एंड स्टैंड फॉर एवरेज एट बेस्ट। AAB इज एग्जाम्पल मैं आगे जाके वीडियो के अंदर दूंगा कि कौन सी जो भी एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर यूज़ होती है एंड्रॉयड के अंदर और कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ होती है एंड्रॉयड के अंदर नहीं। So start the video. As we inch closer to this stable Android version release, the Google is making some fundamental changes to app delivery and distribution on Android devices. From August 2021, all the new app on the Play Store will be published in an Android application bundles. Android application bundles is also known as .aab, and the APK stand for basically Android package kit, and this is called APK Android package kit, and AAP is also known as basically Android app bundle, and this is an extension .aab and .apk. सो ये पैकेजेस की जो हमारी होती हैं बेसिकली बंडल्स, एक जो हमारी पैकेजेस होती हैं उसके हम APK बोल यूज़ करते हैं, जो हमारे बंडल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड ऐप बंडल फॉर एग्जांपल AAB। And after that basically format instead of existing APK format. So what are the major difference between .apk and Android app bundle? AAB can side load AABs, and just like APK, to answer all your question we have come with you detailed guide on APK versus APK. So without wasting any time, let's right into it. First of all, we discuss about APK versus APK, understanding the basic. First, we need to gap the basic property of understanding what are the difference between APK Android bundle and Android app bundles. So APK has been go to the distribution app packages on Android since its introduction, and APK primarily consists of app codes, heavy resources such as images, audio, etc. इस तरह की और भी खास मिसालें। और APK signed to key generated by developer. Note that Android devices come in various form factor and specification. For example, the device has variety degree of screen density, 320 and depth per linear inch, and 480 depth per linear inch, for example, and etc. for processing type ARM and ARM 64-bit and x86-bit and more. Also based on the user region, app need to have large language packages. And in comparison to APK, and AAB format is not completely new distribution package. In fact, AAB is a container that hosts a base APK and multiple split APKs. तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा APKs के स्प्लिट भी हो सकते हैं और ये बंडल भी हो सकता है हमारा बेसिकली। And basically AAB is a publishing format that developers submit to the Play Store, while APK is the packaging format for Android app that you इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें तो जो हमारे AAB होते हैं, AAB बेसिकली ऑफिशियली इंस्टॉल किए जाते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ज़रिए, और प्ले स्टोर के ज़रिए ही हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी वे नहीं होता उसको इंस्टॉल करने का। और AAB के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इस तरह की जितनी एप्लीकेशन होती हैं जो सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, तो ये सारी AAB कहलाती हैं। बेसिकली होती तो APK वाली हैं, APK फॉर्मेट से बनी होती हैं, APK डेवलपर बनाते हैं, लेकिन ये सारी ऑफिशियली तौर पे प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं AAB। तो अगर हम बात कर लें APK की बेसिकली एक फॉर्मेट होती है जो कि इंस्टॉल की जाती है इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए
वो कोई भी एप्लीकेशन जो कि एपी के फॉर्मेट में होती है वो आप एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। और जो एएबी होती है वही एक टाइप होती है एपीके की, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती है और वहाँ से उसे यूज़ करके अपने डिवाइसेस के अंदर, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो डेवलपर होते हैं वो एएबी फॉर्म बनाते हैं सिर्फ उसके लिए, जो यूज़ हो रही होती है हमारी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन, और एपी के फॉर्मेट तब बनाते हैं जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती है हमारी इंटरनेट के ऊपर। जैसे कि हमारी आगे विडमेट जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट पे एपीके के तौर पे अवेलेबल होती है। वो हमारी जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्ले स्टोर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया एपीके और वर्सेस एएबी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।